السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء گوالیر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم 73ویں گنتنتر دیوس یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کو لے چلتے ہیں جمعیت علماء گوالیر کا پروگرام، سماعت فرمائیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کلام شریف سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم خوشی کا پل ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں اس کی مثال بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بیک میں جائیں اور یہ سوچیں کہ سموِدھان کی جب استھاپنا ہوئی، سموِدھان جب بنایا گیا تو اس کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی، اتنی کوششیں کی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو اس کی کوشش کی گئی کہ پارلیمنٹ میں پہنچ ہی نہیں پائے، یہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں تاکہ یہ سموِدھان بن کر کے لیے اور لاگو ہو سکے۔ باقاعدہ اس کی کوشش کی گئی، اور مسلمانوں نے ہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو پڑھایا، ان کا پورا ساتھ دیا، شروع سے نہیں بلکہ آخر تک، اور باقاعدہ ان کو جتا کر کے اسمبلی میں بھیجا۔ سموِدھان کے لاگو کرنے کے لیے پوری جتنی بھی جدوجہد اور کوششیں ہو سکتی تھی وہ مسلمانوں نے کی۔ اس وقت سب سے زیادہ نشان پر مسلمان ہیں، جن کو حضرت کہا جاتا تھا تو اس کو آگے بڑھایا ہے، باقی ہم لوگوں کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ اس وقت ہندوستان کے اندر زیادہ تر جو جن سنکھیا تھی وہ اوبیسی اور دلت سماج کی تھی، اور سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پر ہوتا تھا وہ ان پر ہوتا تھا، سب سے زیادہ زیادتیاں ہوتی تھی ان کے اوپر ہوتی تھی۔ تو اسی لیے مسلمانوں نے ہمیشہ کمزور اور ضرورت مندوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو جس وقت یہ سموِدھان بن کر کے اسمبلی میں پاس ہوا، اس کو لاگو کیا گیا، تو آج کا یہ دن خاص کر ہماری قربانی کی بنا پر تھا۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی منانے کا دن ہے تو ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اس کی کوشش کی کہ کس طرح سے سموِدھان لاگو ہو جائے، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے آج کی جدوجہد کریں۔ مخالفین تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سموِدھان لاگو ہو ہی نہ، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، ہماری من مرضی چلے، ہم جس کے اوپر زیادتی کریں وہ ہمارا اختیار ہو۔ ہم اونچے طبقے والے ہیں، اونچی شان والے ہیں، اونچے عہدے والے ہیں، ہم زیادہ مالدار ہیں، لیکن سموِدھان نے سب کو برابر کا درجہ دیا۔ ہر ایک جان کا برابر کا درجہ، ہر ایک جانکار کو اپنے لیے کا حق ملنا چاہیے۔ اگر کوئی گنہگار ہے، وہ امیر ہو غریب ہو،
फकीर हो, कोई भी हो, किसी के खानदान से ताल्लुक रखता हो, किसी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए। ये हक हमें संविधान देता है, हमें इसको बाकायदा पढ़ना भी चाहिए। और अब तो हर एक लैंग्वेज के अंदर संविधान हमारे यहाँ अवेलेबल है, उर्दू के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है, तमाम जबानों के अंदर है। उसको लाओ, पढ़ो और दुनिया वालों को बतलाओ कि संविधान के तरह हमारा हक क्या है। इसकी हमें कोशिश करना चाहिए। आज संविधान आज की तारीख में 26 जनवरी को लागू हुआ था, उसी बिना पर हम खुशी मनाते हैं। और इस खुशी के अंदर हम संविधान की उन परिस्थितियों को याद करते हैं जिन परिस्थितियों के अंदर संविधान को लागू किया गया, उस कुर्बानी को याद करते हैं। इस तरह से जंगी आज़ादी में 15 अगस्त पर हम खुशी मनाते हैं, आज़ादी की, स्वतंत्र होने की आज़ादी मनाते हैं, हम आज़ाद होने की आज़ादी मनाते हैं। इसी तरह से 26 जनवरी को हम अपने संविधान लागू होने की खुशी मनाते हैं। तो इस खुशी में हम सब शरीक हैं। अब मैं अपने हमारे अजीज मित्र, हमारे कांग्रेस के नेता पुलक सिंह सूर्यवंशी जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और चंद शपथ लेकर। सभी यहाँ उपस्थित लोगों सभी को मेरी तरफ से सलाम। आज 26 जनवरी 2022 बुधवार का दिन है। ये 26 जनवरी का जो त्यौहार मनाया जाता है, ये खुशी का त्यौहार है। ये दिन अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके पहले 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में कानून बना, मंत्रिमंडल गठन हुआ, तो समिति बनी, उसमें कई लोग के समितियों में। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान बनाने के लिए उनको प्रेशर डाला जा रहा था, तो अब उनको संसद में जाना जरूरी था। तो एक उनका मुझे नाम मेरा ध्यान तो गया, तो मौलाना जी साहब थे, तो उन्होंने वोट दिया अपना, नेहरू जी से उन्होंने कहा कि सर मैं डॉक्टर बाबा साहब का समर्थन करता हूँ, इनको सरकार में लेके इनको कानून मंत्री बनाया। फिर उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से पूछा, वल्लभ भाई पटेल से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये काबिल तारीफ है, तो बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही। उनका कुरैशी नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनकी बात पे फिर नेहरू जी भी सहमत हुए। फिर गांधी ने कहा नहीं इनको बनाइए, तो उनको उस कानून बनाने उसमें सरकार में लिया। फिर उनको विधि कानून मंत्री बनाया डॉक्टर अम्बेडकर जी। उसके बाद में फिर 12 आदमी की एक समिति बनी के साथ समिति के सभी लोग इस भारत का कानून बनाएंगे। तो उसमें कुछ लोगों को मतलब ऐसा गलत लगा, उसमें सभी समाज के, तो उन्होंने कहा दलित को मुसलमान को, उन्होंने कहा इन लोग कौन ले रहा है, इन लोग कौन ले रहा है। तो कुछ ऐसे लोग थे, अपन शॉर्ट में चल रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कोई लोग बीमार हो गए, तो बाबा साहब और एक और थे मौलाना जी थे, तो 2 लोग रहे। तो उन्होंने कहा आप बनाइए, आप पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा 5000 आपने कानूनी किताबें पढ़ी है और 155 देशों का आपने संविधान पढ़ा है, तो आपसे ज़्यादा एक कोई नहीं। उस समय क्या सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े थे, उनके पास बढ़िया। और आज की तारीख में जैसे कि चीन है, अमेरिका, या सबसे बड़ी लेबोरेटरी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। ऐसी ऐसी बिल्डिंग बड़ी लेबोरेटरी है, और चीन तो ये कर रहा है कि बाबा साहब जो अपने भारत का संविधान है इसको अपनी भाषा में तब्दील करके फिर उसको लागू करें। ऐसा मतलब अपन जो समाचार में आता है पेपर में न्यूज़ में अपन वो, अब बाबा साहब को बनाया तो मैं संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान पूरा करने के बाद में 26 जनवरी 1950 को इस संविधान पूरी संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, अब्दुल मौलाना आजाद और ऐसे सभी लोग थे, उनके सामने वो संविधान को सौंपा। तो सभी ने पढ़ के मतलब संविधान को कहा बहुत बढ़िया संविधान है साहब, ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं। और फिर जी तो बहुत एक आदमी है मतलब जिन्होंने संविधान लिखा, जबकि उस समय
संविधान को सौंपा तो सबको खुशी हुई। तो उस दिन से 1950 से अपने भारत का संविधान लागू हुआ। उस खुशी में ये आज 26 जनवरी जो मनाई जाती है, उस खुशी में ये 26 जनवरी का त्योहार मनाया जाता है। और इसमें दलित, ओबीसी, मुसलमान इनको ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन ये कुछ जो सरकारें बनी उन्होंने उसको कानून को दबा के रखा। जैसे एक छोटी सी एक बात बताऊं मैं आपको, संविधान के तहत यदि कांग्रेस की सरकार चलती रही, इंदिरा गांधी 18 साल प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, 70 साल इंदिरा गांधी जी रही, फिर उसके बाद में फिर मोरारजी भाई देसाई ऐसे रहे। तो फिर उसमें जाके 90 में जाके विश्व प्रताप बीपीसी प्रधानमंत्री बने। बीपीसी प्रधानमंत्री बने तो इस उन्होंने मंडल कमीशन बनाया। उसमें दलित, ओबीसी, ज्यादातर ओबीसी को लिया। ओबीसी में जैसे दलित तो एक अलग होगा, ओबीसी में कई जातियां हैं, अल्पसंख्यक कम जातियां हैं। तो उन्होंने वो मंडल कमीशन बना के कानून लागू किया। तो सन 1932 में जो साइमन कमीशन आया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ब्रिटिश सरकार से लाए थे, तो उन्होंने उस समय भारत की दशा वहाँ आगे बताई थी कि साहब हमारे भारत में दलित, पिछड़े, दलित, पिछड़े वर्ग के सभी प्रकार सभी समाज के लोग हैं। आप उनकी स्थिति देखी चलती, जब उन्हें स्थिति देखी तो उन्हें सही है। तो उस समय का हवाला दिया था। तो कुछ उन्हें सब जाके देखा, मोहल्ला में जाके, गाँव में जाके देखा, उन्हें सब दिया। तो गांधी जी ने कुछ लोगों को बहका दिया, जैसे एक दूसरे की बातों में आता ही उन्हें कहने भाई हमने दलित अछूत नहीं रहना चाहते। तो उस समय बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था तो उसमें लिख दिया था, मेरे भारत के लोग दलित, पिछड़े लोग जो किसी के बहकावे में आ गए किसी कारण से, जब भी ये संविधान लागू हुए तो धारा 340 के अंतर्गत उनको पिछड़ा वर्ग का दर्जा देके उनको जो सुविधाएं जो दलित, मुस्लिम सबको दी जा रही है संविधान के तहत, वो उनको भी दी जाए। तो उस समय ऐसा था, ध्यान होगा 1990-89 की बात है। तो आरक्षण जब लागू करा बीजेपी सरकार ने तो बहुत दम हुआ था, दम में भी वो आत्मदान करा था कि उन्होंने जो समान वर्ग के 15% लोग समान वर्ग जो आज सत्ता में बैठे बड़े लोग जो अपन लोगों को भी मौका नहीं दिया। तो जी बाबा साहब की कितनी बड़ी सोच थी संविधान में जो उन्हें, लेकिन जब भी मेरे दलित, पिछड़े लोग जो किसी बहकावे में आ गए, जब भी इनको ये संविधान लागू होकर धारा 340 के अंतर्गत तो ये सारी सुविधा दी है। तो आज ये पिछड़ा वर्ग चल रहा है, उससे आपको हमको सब लोगों को सुविधा मिली। उस समय विरोध हुआ और आज वही सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को। तो मतलब इस वर्ड में मैंने बताया। तो आज अपना 26 जनवरी का दिन है, उसी से मनाया जाता है। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज की खुशी सभी मनाए, अपना संविधान बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय। हमारे महल्ले के पूरन सिंह सूर्यवंशी जी हैं, ये एनजीओ भी चलाते हैं और समाज सेवा का काम भी करते हैं और अपने समाज से के लीडर भी हैं। काफ़ी समय से संघर्ष करते हैं और लोगों के साथ में उन्होंने अपने देश की सेवा की है और सामूहिक विवाह सम्मेलन भी चलाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराना, बहुत सारे अच्छे काम करते रहते हैं। इन्होंने चंद बातें कही आरक्षण के ताल्लुक से। हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान भी बहुत सारी जातियों मुसलमानों की हैं, वो इसी के दायरे के अंदर आती हैं, जिसके लिए हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो सर्टिफिकेट बनने से अक्सर ये होता है कि जो बच्चे कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिनकी 2-2, 3-3 लाख फीसें हैं, वो स्कॉलरशिप के जरिए से माफ हो जाती हैं और बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। कोशिश उस वक्त की गई थी, जैसे कि अभी हमारे अजीब ने बताया, कोशिश उस वक्त की गई थी, फायदा आज हमारी औलाद उठा रही है। तो हमें इसको समझना चाहिए कि हमें एकजुट होकर के नहीं, दलित समाज को, पिछड़ा वर्ग को, मुसलमानों को, सबको एकजुट होकर के नहीं, हर एक के लिए मेहनत करना। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मदरसे जो कि हमारे मौलाना साहब और हमारे सदर मोहतरम मौलाना तैयब साहब, शफी साहब, अब्दुल साहब, बैठे हुए हैं। अब मैं दावत देता हूँ
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. میرے محترم بزرگ اور دوستوں عزیز بھائیوں، آج 26 جنوری 1922 ہے اور یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے سبھی کے سماجوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور آج کے تعلق سے ہمیں جس تاریخ کو جاننا چاہیے، وہ چاہے کسی برادری سے ہو، کسی کنبے سے ہو، ہمارا فریضہ ہوتا ہے ایک دیش واسی ہونے کے ناطے سے ہم اس کی تاریخ کو جانیں اور اس کے پس منظر کو پڑھیں۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور ٹھیک 3 سال کے بعد 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا سنویدھان لاگو کیا گیا۔ تو ہمارے لیے یہ پورے سال کے اندر یہ 2 دن ایسے آتے ہیں جن کے اندر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج ہماری آزادی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے اس سے بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو حقوق، ہمارا جو حق آئین دیتا ہے، جو ملک کا سنویدھان دیتا ہے، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی تاریخ کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ جس دن کے اندر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ دن کئی قربانیوں کا اور کئی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی محنت کا ثمرہ انسان دیکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی تاریخ، اس کے پیچھے کی محنت اس کو نہیں معلوم ہوتی، تو اس ملے ہوئے پھل کی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ جہاں سکون سے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی قربانی ہے۔ کتنے لوگ ہمارے برادران وطن میں سے ایسے ہیں، اب وہ چاہے کسی برادری سے ہوں، ہمارے مسلم بھائی ہوں یا ہمارے ہندو بھائی ہوں، کئی لوگوں نے قربانی دی اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس دیش کی خاطر جو خون کو بہایا ہے۔ تو ہمیں ان کی قربانی کو جاننا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک یہ دینی فریضہ بھی ہے کہ اس کی تاریخ کو جانیں۔ اب وہ تاریخ کوئی سی بھی ہو، وہ ہمارے دیش کی تاریخ ہو، ہمارے اسلام کی تاریخ ہو، وہ کسی چیز کی تاریخ ہو، کیونکہ ہمارے سامنے اگر ہمارا ماضی نہ ہو، یعنی ہمارا گزرا زمانہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو آگے کے راستہ پہ ہموار نہیں ہوگا کہ ہمیں آگے نقش قدم کیسے چلنا ہے، ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اس لیے بس مختصر یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سنویدھان کو بھی پڑھیں اور جو سنویدھان ہمیں حق دیتا ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، ہم اپنے آنے والی نسل کو بتلائیں، کیونکہ آگے ایسی تیاری ہے، آگے ایسی پلاننگ ہے کہ سنویدھان کے اندر سے جو ملے ہوئے ہمیں حقوق ہے فرض کے اس کو ہٹایا جائے، اس کو بدلا جائے اور تقریباً ایسی پوری تیاری کو سنویدھان کو بدل دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خود بھی تاریخ پڑھیں اور دوسروں کو بھی سمجھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی ہمیں تاریخ پتہ نہ ہو تو اس سے ہم ناشنا ہوں تو ہم آگے اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جب تک ماحول کے اندر امن نہ ہو، سکون نہ ہو، تو ہم کوئی کام کر نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہ ہم رب کائنات کی عبادت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر امن ہو، ہمارے اندر سکون
हुक्म करें और बुराई से रोकें, मकसद ये होता है। और मंजर ये मकसद नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि हमें अफसोस है कि हमें अपने अकाम की कुर्बानी पता नहीं है। इसलिए बस हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमें अपने संविधान को भी पढ़ना चाहिए और हमें अपने तारीख को भी पढ़ना चाहिए, ताकि उसकी नक्श कदम में हम अपना मुस्तक़बिल बनाएं। अल्लाह ताला हमें बड़ी बात कहने, ज़्यादा सुनने, ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मदरसे से मौलाना साबिर साहब तशरीफ लाए थे, बहुत कीमती बात कही। और आखिर मैसेज ये है कि हम दोनों तालीम से आशना हो। एक अल्लाह ने हमें कुरान दिया और दूसरा हमें संविधान मिला। हम कुरान को भी पढ़ें और संविधान को भी पढ़ें, ताकि हम दोनों तालीम के अंदर मजबूत हो सकें, अपने हक के लिए भी और अपने मजहब के लिए भी, दोनों तरह से मजबूत हो सकें। मैं हाफिज शफीक साहब को दावत देता हूँ। हाफिज यूनुस साहब चंद अल्फाज आप शफीक साहब हैं, चंद अल्फाज। मुझे कार्यक्रम में और जाना तो आप लोग साथियों, आप सभी को मालूम कि हम जश्न यौम जमहूरिया मना रहे हैं। आज 26 जनवरी 2022 बड़ा खुशी का दिन और सारे देशवासियों के लिए बड़ी खुशी का दिन। जिस तरीके से मजहबी एतबार से कुछ त्योहार होते हैं, मुसलमानों में, इस्लाम मजहब के मानने वालों में जो त्योहार है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है। क्रिश्चियन ईसाई लोग हैं, क्रिसमस डे को गुड फ्राइडे मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई हैं वो दीपावली और होली का त्यौहार मनाते हैं, मजहबी त्यौहार। मगर पूरे देश में बसने वाले देशवासियों के भी दो त्यौहार हैं, सबके लिए वो मजहबी त्यौहार नहीं होते। एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। तो आज हम जश्न यौम जमहूरिया के मौके पे जमा हुए हैं। और एक बात और बताते चलो कि मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसको बोल पीट कर या किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत एक ऐसा एहसास है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको पेश किया जाता है। और इसका जब भी वक्त पड़ा, जब भी मौका पड़ा, सभी लोगों ने उस मोहब्बत को पेश किया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। देश प्रेम एक ऐसा प्रेम है, जब भी जरूरत पड़ी है देश को, चाहे वो खून की जरूरत पड़ी हो या जान देने की कुर्बानी की जरूरत पड़ी हो, लोगों ने वक्तन फवक्तन उस मोहब्बत को पेश किया है। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, क्योंकि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हसासियत का मामला होता है, इस मौके पे मुदल्लल बात रखी जाए और तारीखी बात पेश की जाए, जिससे आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठा सकें और आने वाली नस्लों को बताया जाए कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे इस्लाफ ने, क्योंकि हर मजहब वाले अपने तौर से बात बताते हैं, मगर हमें भी, हम इसलिए पीछे हैं और हमारे जो नस्ल है वो भी इस चीज़ को जानती नहीं है। हम मकतब पढ़ाते हैं तो मकतबों में आने वाले बच्चे इस चीज़ को बताते हैं कि फला साहब ने कुर्बानी दी, फला साहब ने कुर्बानी दी, फला साहब ने कुर्बानी दी, मगर उनकी ज़बान पे कभी हमारे असलाफ के नाम नहीं आते, क्योंकि तारीख में असलाफ के नामों का जिक्र भी कम करती जा रही है। जो लोग आ रहे हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं या बातिल ताकतें हैं, वो हमारे असलाफ के नामों को हटाते जा रहे हैं और तारीख को मस्क करते जा रहे हैं, तारीख बदलते जा रहे हैं। बल्कि उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो जो संविधान लिखा गया, जो आज जिस मौके पे संविधान लागू किया गया था, तो संविधान को भी मस्क करने की कोशिश की
पढ़ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात के सामने कुछ तारीखी बातें पेश कर सकूं। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हिंदुस्तान जमहूरी बना। आज 26 जनवरी 2022 को हम 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। मोहतरम साथियों, बाहर का यह दिन 1-2 उंगली कटाकर नहीं मिला, 1-2 साल एहतिजाज करके नहीं हासिल हुआ, बल्कि मुल्क की आज़ादी में हमारे असलाफ उलमाए इकराम ने बिरादरान वतन के साथ मिलकर बड़ी कुर्बानी दी। अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद हिंद की तारीख से उलमा की कुर्बानियों को हटा दिया जाए तो मुल्क कभी आज़ाद ना हो पाता। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, 15 अगस्त 1947 को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें नई सुबह का पैगाम लाई। ये वही सुबह थी जिसके ज़ुहूर से गुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ, जो 150 साल बरस की तवील मुद्दत तक मुख्तलिफ था। उस गुलामी की तवील तारीख की रात में तहजीब के खुद साख्ता गोरे ठेकेदारों को हमने खून से मासूम शहजादों का खून पीते देखा। उसी तवील तारीख की रात में बेटों के सर काट कर तख्त में सजाकर बाप के सामने पेश किए गए। उसी भयानक रात में हुनरमंद और माहिर उस्ताद कारीगरों के हाथ कलम हुए और अंगूठे फतह किए गए। किसानों की जमीनों को छीनकर दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया गया। इसी तारीख की रात की जल्द सुबह हो, इसके लिए हमने कौन से जतन नहीं किए। आज़ाद हुकूमतों की तश्कील की, मज़ाहमती तारीखें चलाई, मज़ाहमती तहरीकें चलाई, जान व माल की कुर्बानियाँ सब किया जो गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए करना चाहिए था। जब कहीं जाकर हमें आज़ादी हासिल हुई। ये मुख्तसर गोरों की तरफ से जो जुल्म ज़्यादती हिंदुस्तानियों और मुल्क के बाशिंदों पर हुई, ये मुख्तसर सी दास्तान है। अगर गोरों की जुल्म की दास्तान को बयान किया जाए तो ये कलील और मुख्तसर मौके पे बयान नहीं किया जा सकता, बहुत तवील फहरिस्त है। इसी मौके पे किसी शायर ने कहा है, इस जमीन से पूछ, रोशन चिराग के तारों से पूछ, मेरा हर किरदार को फितरत के उन नजारों से पूछ, जब चमन के वास्ते खून जिगर दरकार था, जब चमन के वास्ते खून जिगर दरकार था, किसका था आगे कदम दुश्मन की तलवारों से पूछ। आजादी मिल जाने के बाद एक बड़ा मसला यह था कि मुल्क का दस्तूर कैसा हो, मजहबी या गैर मजहबी, अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान हुकूक कैसे तय किए जाए। अपने मुल्क में अपने ही लोगों पे अपना कानून बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 19 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील की गई, जिसको मुल्क का कानून मुरतब करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। दस्तूर साज असम्बली के मुख्तलिफ अजलास में इस नए दस्तूर की हर चीज पर खुली बहस हुई। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस नए कानून को नाफिज कर दिया गया और पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी जश्न यौम जमहूरिया यानी यौम जमहूरिया के कुर्बान से मनाया जाना है। और 15 अगस्त की तरह ये भी मुल्क का कौमी यादगार दिन बन गया। आज़ादी के बाद मुल्क का सेकुलर जमहूरी निज़ाम नाफिज कराने में जमीयत उलमा ने क्या दिया हिंदुस्तान को, ये सबसे बड़ा सवाल होता है।
जमीयत उलमा वो जमीयत है जो 1919 में वजूद में आई, कायम हुई, और जमीयत उलमा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। अगर उसको हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आए जमीयत उलमा क्या चीज़ है। उसका मुख्तसर बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद मुल्क का सेकुलर जमहूरी निज़ाम नाफिज कराने में जमीयत उलमा हिंद का रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना हिब्बुर रहमान साहब सिहोरवी ने बहैसियत रुकन दस्तूर साज असम्बली की अक़लियतों को मुराद दिलाने में नुमाया हिस्सा लिया। चुनांचे आइन के इब्तिदाई हिस्से में साफ साफ ये लिखा गया कि हम हिंदुस्तानी अवाम तजवीज़ करते हैं। चुनांचे आइन हिंद के इब्तिदाई हिस्से में साफ साफ ये लिखा गया कि हम हिंदुस्तानी अवाम तजवीज़ करते हैं कि इंडिया एक आज़ादी समाजवादी जमहूरी हिंदुस्तान की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशी, सियासी, इंसाफी, आज़ादी ख्याल, इजहार राय, आज़ादी अक़ीदा, मजहबी इबादत, इनफरादी तशख़्ख़ुस व एहतराम को यकीनी बनाया जाए और मुल्क के सालमियत व अहदहदी को दायम रखा जाएगा। हर इंसान को अपने मजहब पर खुले अंदाज में अमल करने का हक हासिल होगा और हर एक को आज़ादी राय, इजहार राय का हक हासिल होगा। सन 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने दस्तूर के इसी इब्तिदा में लफ्ज़ सेकुलर का इजाफा किया। हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है। इसमें मुख्तलिफ ख़यालात, तहज़ीब व तमद्दुन के लोग बसते हैं और यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती और पहचान है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इसी अंदाज को राहत इंदौरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया अपने शायरी अंदाज में, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अब हमारी शरीफ कमेटी के नायब सदर अब्दुल्लाही साहब को दावत देता हूँ। अल्लाह की बात है। सबके सामने जो है अभी सबके सामने भी अच्छी बात बताई थी कि हम जो है इसमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें कुछ बड़े लोग जो है शिरकत नहीं करते हैं, इसमें बहुत लोगों को भी आना चाहिए, लोग जमा होना चाहिए और उन तक ये बात पहुँचे ताकि जो है वो अपने दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँ और उनको भी पता चले कि हम जो है अपने देश के लिए जो 26 जनवरी का हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसका हमारा संविधान बनाया गया था 26 जनवरी में, ये तारीख उनको मालूम होना चाहिए और उनके नस्लों को बताएं और हमारे हक क्या हैं तो उनको हम पहचानें ताकि हम लोग को मांगने वाले बने, छीनने वाले बने। अगर हम जो है बच्चों को बैठा के, अपने बच्चे बेचारे आए हैं इतने बड़े नहीं है जितने बच्चे बैठे, क्योंकि बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि संविधान क्या है और आज़ादी क्या है और 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है। ये तो जो लोग मकर लोग हैं, घर के बड़े लोग होते हैं, वो लोग के नाम जो है बच्चे स्कूल में भी मनाते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि मुसलमानों के और हमारे हिंदुस्तान के
क्या हुकूक है, हम इसको कैसे अदा करेंगे और हमारे यहाँ रहने में हमारी क्या क्या हमारी जो है इसमें कुर्बानियाँ हैं हमारे बुजुर्गों की बड़ों की, तो वो बड़े जमकर और उससे जो है बच्चे जो रहते हैं। अगर उनको अपने हुकूक और अपने वो माँ बाप बताएंगे बच्चों को, स्कूलों के अंदर जो है मुसलमान की कुर्बानी को नहीं बताया जाएगा, तो हमारी असलाफ की कुर्बानियाँ जो लगी हैं उन कुर्बानियों को हम अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल को अगर कोई हमारे सामने खड़ा हो कोई बात करे तो हम उसको जवाब दे सकें कि तुम हमारे देश में हमारे इस देश को आज़ाद कराने में हमारा भी हाथ था। तो ये एक ऐसी पहचान है जो हमको जहाँ भी हम कहीं जाएंगे वहाँ इंशाअल्लाह बदले रहेंगे और उसका जवाब दे सकेंगे। तो इसके लिए तमाम बस्ती वालों से भी और आइंदा अगर हम लोग जो अगर किसी प्रोग्राम में शिरकत करें तो अपने साथ दो चार लोगों को लेकर आए, ताकि मजमा जो है अच्छा खासा दिखे और ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस यही कहकर अपनी बात करता हूँ। तो आपके सामने चंद अल्फाज में अपनी बात कहेंगे। एक जमहूरी और सामाजिक खुशी है जिसमें तमाम बिरादरी वतन एक साथ इकट्ठा होकर इसको मनाते हैं और अपने खुशी का इजहार करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक बात सामने जो आती है वो ये है कि जब इंसान कामयाब हो जाता है और अपनी कामयाबी जब हासिल कर लेता है तो खुशी मनाते वक्त वो अपनी कामयाबी की कुर्बानियों को देखता है कि हमने किस कुर्बानी के साथ इस जीत को, इस फतेह को और इस कामयाबी को हासिल किया है। और यही हमारे यहाँ जमा होने का और खुशी का इजहार करने का एक मकसद है और एक मौका है लिहाजा। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं वो सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी तालीम को और ज़्यादा तरक्की दें और अपनी तालीम में बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ तक देखा गया और कई सारी तहकीकात के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमान की तालीमी फीसद बहुत नीचे जाती है और उसमें कमजोरी होती जा रही है। तो उसके लिए हमको ये सबसे पहली और ये पहला पैगाम मिलता है कि तालीम में सबसे आगे होने की कोशिश करें। मुसलमान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान का मर्द औरत का फरीज़ा है कि वो तालीम हासिल करे, ज़रूरी है। और इस हदीस में अल्लाह ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए और इल्म को सीखने के लिए अगर आपको चीन में जाना पड़े तो वहाँ पर क्या उसको सफ़र करो और इल्म हासिल करो। मकसद ये नहीं है कि ज़्यादा इल्म हासिल करो, मकसद ये कि अगर आपको उतनी मसाफत तय करना पड़े या उतना दूर आपको जाना पड़े या उतनी मशक्क़त बर्दाश्त करना पड़े तो उसको बर्दाश्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहले सफ़र हम जानते हैं कि किस तरह एक सफ़र एक कहते थे कि आग का टुकड़ा है, यानी सफ़र एक जन्नत का रास्ता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी इल्म हासिल करने की ऐसी तरकीब दी कि उनको जिस तरह तकलीफ उठाना पड़े, सफ़र करना पड़े और बहुत लंबा सफ़र करना पड़े तभी तालीम हासिल करने की कोशिश करें। और तालीम से सारे रास्ते खुलते हैं, ये हमको आज इस बात का हम एहसास करें। और बाहर जहाँ इंसान करती तो बाहर तालीम और दीनी समाजी के मामला से ले लें तो जितना इंसान तालीम में आगे रहेगा और दूसरी चीज़ों में भी उसको इसका इल्म हासिल होगा और उसको तरक्की करता जाएगा। लेकिन अगर हमको तालीम से हम दूर रहेंगे या तालीम में हम पीछे रहेंगे, चाहे वो तालीम कोई भी किसी भी
किस कदर उसने फ़ायदा उठाया और नुकसान करने वालों ने नुकसान भी उठाया। लाखों लोग जिसमें कहते हैं कि उसकी वजह से मारे गए या बड़े बड़े जंगे या बड़े बड़े असले उससे तैयार किए गए। तो ये तालीम का एक कह सकते हैं कि एक वजन है, उसकी एक कुव्वत है, उसकी एक अहमियत है, जिसको हमको आज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस ये कुछ मुख्तसर बातों के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक है, जो कहा गया उस पर अमल करने की हमको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुशी का जो मौका इनायत फरमाया है, हमको उसकी जो माजी है उसको भी याद करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए और उसको पिछली बातों से सीख कर आगे हम अपना रास्ता हमारा करेंगे। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिर और सुकून में ज़िंदगी नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना माशाअल्लाह, मौलाना ने बहुत ही बात कही तालीम के एतबार से। इंशाअल्लाह हम ऐड करें कि हर एक किताब का मुताला ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा मुताला नहीं होता, मुताला ख़त्म होता जाता है तो आदमी जहालत की तरफ बढ़ता जाता है। कोई भी आलिम मदरसे के अंदर उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुताले को लाज़िम न बना ले। जितना उसने मदरसे में पढ़ा होता है उससे कई गुना ज़्यादा उसने बाहर जाकर के पढ़ता है। वहाँ सिर्फ उसको पढ़ने का तरीका बदलाया जाता है, बाकी असल पढ़ाई उसकी फील्ड पे जाकर होती है। असल उसकी जो निखार आता है वो फील्ड पे जाकर के आता है। जो इस लाइन में मेहनत करता है उसका माहिर बन जाता है। तो हज़रत ने बहुत कीमती बात कही। हमें हाफिज़ इमरान साहब को दावत देता हूँ, वो आए और अपनी मुख्तसर सी बात करें। मस्जिद के अंदर तशरीफ़ रखना और हमारे जमीयतुल उलमा गवालियर के सदर मौजूदिया और हम सब शुक्रगुज़ार हैं जमीयतुल उलमा गवालियर की सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब का कि आपकी मेहनत और कोशिश से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, आज हम और आप यहाँ जिस उन्वान से ताल्लुक़ से जमा हुए हम सबके सामने मौजूद है कि 26 जनवरी। तो दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, 26 जनवरी के ताल्लुक़ से आपके सामने तफसीली बात आ चुकी। माशाअल्लाह हाफिज़ शबीर साहब ने उसकी बहुत अच्छी तफसील से बात की। मैं दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, कहने का मकसद ये है कि कोई कौम जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने अकाबिरीन, अपने असलाफ, अपनी पिछली तारीख को भुला दे। अगर हमें तरक्की करना है तो अपनी पिछली तारीख को याद करना होगा। मैं दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़, समझने की ज़रूरत इस बात की है कि हम तारीख को पढ़ें। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से यहाँ जो जमा हैं, आज हम आज़ाद भारत के अंदर जो बैठे हैं, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, इसके अंदर हमारे अकाबिरीन बहुत कुर्बानी है। वो भी हमारे वतन भाई और भी हमारे मुल्क के दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल अगर कुर्बानी में पीछे तो रहा तो मुसलमानों का। तो दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, तारीख के अंदर ये बात मिलती है कि उलमाए किराम ने, उलमाए देवबंद ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों से सुना है, किताबों के अंदर एक नोट है ये बात कि शामली के मैदान से दिल्ली तक कोई दरख्त, कोई पेड़ ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त के ऊपर एक रोजना इस्लामी गर्दन ना लटकी हो, जिनकी लाशों को नहीं लटकाया गया हो। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग अज़ीज़ों, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम भारत आज़ाद देश के अंदर बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग, हम इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। वाक़िअ दावाना
अक्सर लोग मस्जिद में आने से कतराते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम को थोड़ा सा बाहर मैदान में रखा जाए। और दूसरा ये कि हमने यहाँ पर ये सिलसिला शुरू किया कि हर एक को बोलने का, तो जमीयत उलमा की पहल होती है कि अफराद तैयार किए जाएँ जो अपनी फील्ड के अंदर लगन के साथ काम कर सकें। ये नहीं सिर्फ बड़े काम को करेंगे, छोटे नहीं करेंगे, छोटे सीखेंगे तो करेंगे। जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो खुद ब खुद आदमी के अंदर सलाहियत काबिलियत आ जाती है। हजरत मौलाना मरहूम मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह उनकी क़ब्र पर करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, वो अक्सर इस बात को कहते थे और जिम्मेदारियाँ भी देते थे कि जिम्मेदारी दोगे नहीं तो जिम्मेदारी संभालने वाला बनेगा कैसे। जब किसी के पास किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं आएगी तो उसको घर चलाने की सलाहियत नहीं आएगी। किसी के ऊपर इमामत की जिम्मेदारी नहीं आएगी तो क्या इमामत के मसाइल से वाकिफ होगा। जब जिम्मेदारी आती है तो खुद ब खुद आदमी के अंदर सलाहियत काबिलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा से हम बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे। अब सबसे आखिर में मैं अपने सदर मोहतरम मौलाना नईम साहब को दावत देता हूँ, वो अपनी बात को फरमाएं और साथ ही दुआ भी फरमाएं, और इसके बाद में इंशाअल्लाह हम सबके पास तशरीफ है। सबसे पहले तमाम ही शिरकत करने वाले हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। खुशखबरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन है और हम सब इसी ईमान पर यहाँ जमा हुए हैं। बातें लगभग आ चुकी हैं, चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि घर में जब आदमी गरम गरम रोटी खाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे, इस रोटी के बनने में इसके पीछे कितनी मशक्कतें और मेहनतें और कुर्बानियां लगी हैं। कि एक किसान जब रात और दिन मेहनत करता है, खेत को हमवार करता है, गल्ला पैदा करता है, वो बाजार लाता है, बाजार से फिर घर में आता है, बनाने वाले कोई और होते हैं, खाने वाले कोई और होते हैं। खाने वाला ये सोचता है कि मेरी मेहनत से गरम रोटी मेरे सामने है, जबकि ये गलत है। हकीकत ये है कि उसमें न जाने कितने लोगों की रातों की जगाड़ है, कितने लोगों का खून पसीना उसमें शामिल है, तब जाकर वो रोटी उसके सामने आती है। आज हम जिस 26 जनवरी के दिन, इस खुशी का दिन मनाने के लिए बैठे हैं, हम नहीं जानते कि इस खुशी का दिन जो हमें बनाया मिला है, हम तो अभी आए हैं, अपनी बात करके चले जाएंगे, लेकिन इसके पीछे कि आज हमें जिस दिन नसीब हुआ है, इसके पीछे कितने लोगों की मेहनतें और कुर्बानियां लगी हैं, कितने लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं, कितने लोगों ने अपने बच्चों को यतीम किया है, कितने लोगों ने अपने बीवियों को बेवार किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया और उस वक्त दिल्ली के अंदर एक अंग्रेज ने कहा था कि आज से इस मुल्क पर पूरे तौर पर हुकूमत हमारी होगी, उसके 3 साल के बाद मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी ने ये कहा था कि आज से हमारा मुल्क अंग्रेजों के हाथ में जा चुका है, ईस्ट इंडिया इस पर काबिज हो चुकी है। और सबसे पहली आज़ादी की आवाज़ लगाने वाले मौलाना अब्दुल अजीज साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने उस वक्त ये बात कही जब उससे पहले कोई ये बात कहने वाला भी न था। और उन्हीं की इस आवाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकबूलियत दी, वो ताकत दी, वो कुव्वत दी। 1947 तक आते आते हमारा मुल्क आजाद हुआ। और हम ये नहीं जानते कि इस मुल्क के आजाद करने में सबसे पहली आवाज उलमाए देवबंद की थी, उलमाए किराम की थी। और मुल्क आजाद होने तक बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और मुल्क आजाद होने के बाद जब संविधान लागू करने की और संविधान बनाने की बात आई, तब वो लोग जिनका मुल्क की आजाद करने में कुछ भी हिस्सा न था, वो
वो बराबर खड़े होकर ये कहते थे कि इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून नहीं बनेगा, बल्कि इस मुल्क का कानून एक जात के नाम पर बनाया जाएगा। उस वक्त भी उलमा इकराम ने अपना सीना चौड़ा करके कांधे से कांधा मिलाकर, आंखों से आंखें मिलाकर ये कहा था कि हम इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून ही बनने देंगे। और ये जज्बा, ये शौक कहां से आया, ये बोलने की हिम्मत और ताकत कहां से आई, इसकी एक बहुत मुख्तसर सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि जब कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के मुअल्लिम थे और उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बातों से, जिनकी आवाज से, जिनकी तकरीरों से, जिनकी तहरीरों से अंग्रेज परेशान हो चुके थे, उन्होंने खत लिखा कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि आप इनको समझाएं और या फिर इनको अपने मदरसे से निकाल दें। ये अंग्रेजों ने खत लिखवाया हैदराबाद के बादशाह के जरिए से, क्योंकि कुछ न कुछ ताउन की शक्ल सूरत वहां से मदरसे को आया करती थी। तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने कि इनसे कहलाएंगे, शायद इनकी बात मान ली जाए, उनकी बात में ताकत पैदा हो, कुव्वत पैदा हो। तो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा, ए हैदराबाद के बादशाह, कह देना उनसे कि अभी तो हुसैन अहमद मदनी को एक दिन की छुट्टी मिलती है, जुमे के दिन की, उसमें तुम इतने परेशान हो, और अगर मैंने हुसैन अहमद मदनी को मदरसे से निकाल दिया फिर तो वो 8 दिन आजाद रहेगा, और फिर तुम कितना परेशान होगे। ये कुव्वत, ये हौसला हमारे अकाबरीन से हमको मिला है, और हमें भी इस बात की कोशिश में मेहनत होनी चाहिए कि अगर इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून रहेगा तो हम 26 जनवरी मना पाएंगे, अगर इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून रहेगा तब हम 15 अगस्त मना पाएंगे। अगर एक किसान जिसके मेहनत और कोशिश पर गल्ला पैदा ना हो, हमारे घर में रोटी नहीं आ सकती, हमारे घर में चावल नहीं आ सकता पकने के लिए, ऐसे ही अगर इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून न रहेगा, अगर इस मुल्क का कानून जमहूरी कानून खत्म किया जाएगा तो हम भी न 26 जनवरी मना पाएंगे न 15 अगस्त मना पाएंगे। इसलिए मेरा मोहतरम दोस्तों, खासकर मुसलमानों से दरखास्त है कि अपने अमाल से, अपने किरदार से दूसरों के अंदर मोहब्बत पैदा करें, दूसरों को अपना बनाने की कोशिश करें। जो गलतफहमियां हमारे और दूसरों के बीच में हो गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और उसके लिए हमारे किरदार, हमारे अमाल, ये सबसे ज्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं। आज इस 26 जनवरी के मौके पर मैं तमाम लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस मुल्क के कानून, जमहूरी कानून को बचाने के लिए एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर कोशिश और मेहनत करनी होगी, वरना लोग तो तैयारियां कर रहे हैं कि न जाने कितने ऐसे मौके, 100 से ज्यादा ऐसे मौके आ चुके हैं कि कानून में तरमीम की जा चुकी है। अपने को बचाने के लिए, अपने बड़े को बचाने के लिए इस मुल्क के कानून में तरमीम की जा चुकी है, और अगर ये तरमीम न रोकी गई तो फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जमहूरियत का किला एक न एक दिन तहस नहस हो जाएगा, और इस मुल्क के अंदर फिर न जमहूरियत रहेगी, न हम और आप जिस सुकून और इत्मीनान के साथ इस खुशी के मौके को मना रहे हैं, ये दिन भी फिर हमको नसीब ना होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी कोशिश और मेहनत और पूरी की पूरी फिक्र इस बात की हो कि हम इस मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम करें, हम इस मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत कायम करें, हम इस मुल्क के अंदर दुश्मनियों को खत्म करें। इस मुल्क की पहचान यही है कि इस मुल्क के अंदर हर जितने भी दुनिया में मुल्क पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मुल्कों से ज्यादा इस मुल्क के अंदर अक्सर बहुत ज्यादा मजहब में मानने वाले हैं। आपने देखा होगा, एक फूल होता है, एक फुलवारी होती है, फूल एक फूल को कहते हैं, फुलवारी कई फूलों को कहते हैं। हमारा मुल्क फूल नहीं है, हमारा मुल्क फुलवारी है। इस मुल्क के अंदर हर मजहब का मानने वाला मौजूद है, और इस मुल्क के अंदर रहने वाले को हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने इस बात की इजाजत दी है कि वो मुल्क का वासी, उस मुल्क का रहने वाला अपने मजहब को पूरे तौर पर मानने में आजाद है, अपने मजहब को फैलाने में आजाद है, अपने मजहब की तबलीग करने में आजाद है। ये आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है, ये आजादी हमें हमारे इस मुल्क ने दी है। तो हमें चाहिए कि हम और आप सब मिलकर इस बात की आहद और कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह मोहब्बत और अमन और अमान का पैगाम देंगे, जो हमारे जमीयत उलमा हिंद का सबसे
ہے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم تمام مذہب کے ساتھ مل کر تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھائی چارہ قائم کریں امن امان قائم کریں پیار و محبت قائم کریں میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ ہمارے سیکرٹری صاحب انشاءاللہ دعا کریں ماشاءاللہ ہمارے صدر محترم صاحب نے بھی بڑی قیمتی بات کہی اور اب یہیں پر پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ سے پروگرام کو مسجد سے باہر رکھا جائے گا اور بڑے عنوان پر رکھا جائے گا ابھی کووڈ کی وجہ سے زیادہ بڑا پروگرام نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے تھا مختصر سے کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سے اچھا پروگرام کریں گے ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں ضرور شرکت کریں گے دعا کر لیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اے الہ العالمین کے پروگرام مقدس کو قبول فرما یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما اے الہ العالمین اس ملک کے اندر جن لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اس ملک کے اندر بھائی چارگی کو عام فرما لوگوں کے دلوں کو نرم فرما لوگوں کے قلوبوں کو نرم فرما نفرتوں کو دور فرما برائیوں کو دور فرما خیانت کو دور فرما امانت داری کو ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما قربانیوں کا جذبہ پیدا فرما اے الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی حالات خراب ہیں سب حالات کو بہتر بنانے کی فکر عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے ہمارے ملک کے تمام بچوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو دین سے آراستہ فرما ہماری آنے والی نسلوں کو عقل اور فہم اور قربانی کا جذبہ نصیب فرما اے الہ العالمین ہمارے صدر محترم نے اور ہمارے جتنے بھی عزیز ساتھی ہیں جو باتیں کہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین آئندہ مزید استقامت کے ساتھ ہم ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین جمعیت العلماء جو خدمت انجام دے رہی ہے ہماری خدمات کو قبول فرما ہم سے جو لغزشیں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما ہمارے دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما جو مانگا وہ عنایت فرما اور جو مانگنے سے لگے وہ بھی عنایت فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ آپ حضرات نے علماء کی تمام بیانات سنے پورا پروگرام سماعت فرمایا یہ ساری کارگزاری آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ